Hello everyone, myself Prakhar Kumar Singh, All India rank 29 in UPSC CSE 2020. A brief background about me. I have done electrical engineering from IIT Roorkee. I graduated in 2019. In 2020, I gave both UPPCS as well as UPSC. And UPPCS, I got All India rank 19 and I am currently working as Deputy Collector or SDM in Uttar Pradesh. अब लेट आने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ज़्यादातर टॉपर्स ने सब कुछ बोल ही दिया है, तो जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए थे सब बोल ही चुके हैं. अब 2-3 मिनट मन की बात ही करूँगा, जो थोड़ी बहुत करूँगा. कोई फिलोसफिकल टॉक नहीं दूंगा यहाँ पे, बिकॉज एज सत्यम हैज सेड, ये सब बहुत एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है विच इज़ जस्ट गोइंग टू फेड अवे इन अ डे और टू और मे बी विद इन अ वीक. सो बहुत ही क्लीशे थिंग है, बट इंटरनल मोटिवेशन इज़ द की. जो भी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, इफ़ यू हैव द राइट मोटिवेशन, इफ़ यू हैव द राइट रीजंस, और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो रीज़न जो भी हो, बट ये जो प्रिपरेशन है इट इज़ लाइक अ साइन कर्व. अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे. तो जो डाउन में जब आप हो गए और इफ़ यू हैव द राइट रीज़न और वो जो इंटरनल मोटिवेशन है, इफ़ इट कैन हेल्प यू टू पुल योर सेल्फ अप, दैट रीज़न इज़ एनफ. बस उतना ही चाहिए. बाकी as far as the 3 stages of the examination is concerned, first of all prelims stage, I think it is more of an elimination stage. उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि जो बाकी लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो आपका क्वेश्चन ज़रूर सही होना चाहिए. बिकॉज जो 35 to 40 क्वेश्चन आर ईजी क्वेश्चन. ईजी इन द सेंस दे आर ईदर फ्रॉम बेसिक टेक्स्ट बुक्स और दे आर फ्रॉम वेरी बेसिक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटी. वो गलत नहीं करने हैं. जब आप 70-80 मार्क्स पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद एवरीवन इज यूजिंग एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज और इंटेलिजेंट गेसिंग, उसके बाद गेम होता है. लेकिन इफ़ यू आर मेकिंग दोज ईजी क्वेश्चंस इनकरेक्ट, देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस. सेकेंडली, फोकस मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली इन प्रीलिम्स, बिकॉज इट हेल्प्स यू गॉज कि कितना डेप्थ में किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Thirdly, mocks are very important, especially if you are a first attempter or a second attempter, or if you have not been able to clear prelims earlier. Do focus on mocks because that helps you delineate your strategy, how much questions to attempt, what is your accuracy, etc. So I used to attempt 90 plus, and in my final exam also I attempted 93 and got 70 correct. The sweet spot, the question is generally how many mocks should we attempt. So as I said, if you are a first or a second attempter, at least attempt 40 to 50 mocks. I also thought of attempting only 50, but as we know our prelims got postponed. So in the last 2 months, I was attempting a mock a day. So the count went till 110 or 120. In the second stage mains, GS का सब लोग बता ही चुके हैं. I will focus more on essay because being an engineer, essay was the paper which I used to fear the most, because the thought of writing 10 to 11 pages on a given topic was very dreadful for me. So in this paper also I did the most cliche thing. I made notes. I took major themes: agriculture, women, etc. Take any 2 coaching value added material, download 15 to 20 topper copies, search course related to that, write down the sayings of various scholars and make a 1 to 2 page note. Because along with this, think about 2 to 3 different type of introductions, like a positive introduction or a negative introduction, because the question is not going to be directly like write an essay on agriculture. It is going to be somewhat related to, let's say, farmer suicide. So it is a kind of a negative essay. So you can use your introduction, the negative introduction that you have prepared in that essay. Thirdly, interview stage. I was associated with KSG, especially in interview stage, and I would especially like to thank Dr. Khan sir for his valuable feedback, because in interview I have only given 2 offline mocks, one of which was at KSG, and the mock at KSG was the closest to my actual UPSC interview, and many questions were repeated. In fact, the first question of my actual UPSC interview was also the same question which you asked me: why civil services, why are you coming here, why are you not going to USA? So a proper 5 to 6 minute discussion on this actually happened in UPSC interview, and the same discussion actually happened in KSG interview also. For interview, my take is that be genuine, be confident and be honest.
कई बार क्या होता है कि डेफ में पीपल राइट हॉबीज़ जो मार्केट में चल रही होती हैं, उससे हो सकता है कि यू कैन प्रिपेयर दोज हॉबीज़, बट साइकोलॉजिकली उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत इफेक्ट होगा व्हेन यू विल एक्चुअली गो फॉर योर यूपीएससी इंटरव्यू. सो बी ऑनेस्ट इन योर डेफ एंड बी कॉन्फिडेंट. बाकी तो डेफ के अराउंड ही यू कैन प्रिपेयर, करंट अफेयर के अराउंड हम सब लोग ही प्रिपेयर करते हैं. और हैव जेन्युइन ओपिनियंस. ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस्ड भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल रेडिकल भी नहीं होना चाहिए. इन माई ओपिनियन आपका एक ओरिजिनल व्यू होना चाहिए. सो दैट्स दैट. बाकी लास्ट में 2-3 ज्ञान की बातें बोलूँगा कि देखो 0.1% का एक रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करता था कि इफ़ यू वांट टू अचीव व्हाट ओनली 0.1% पीपल आर गोइंग टू अचीव, यू नीड टू गिव द एफर्ट्स विच ओनली 0.1% पीपल आर विलिंग टू गिव. तो जब रात में आप सोने जाओ तो अपने आप से ये पूछा करो कि क्या मैं इतने एफर्ट्स दे रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, कि मेरा नाम उस होली पीडीएफ में आना चाहिए. और जो भी आपका आंसर होगा, अंदर से जो आंसर आएगा वही एक बहुत ही ऑनेस्ट और जेन्युइन आंसर होगा और आपको अपना जवाब मिल जाएगा. सेकेंडली मुझे लगता है कि इस बार बहुत से लोगों ने मूवीज़ का रेफरेंस यूज़ किया है, और मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है. एस्से में इनफैक्ट जो पैट्रियार्की का एस्से था, आई स्टार्टेड इट विद पंचायत का वेब सीरीज़ जो अमेजॉन प्राइम पे है. तो वीकेंड पे मैं बहुत मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में देखता था इन ऑर्डर टू रिफ़्रेश माई सेल्फ. तो करो, मतलब जो भी आप कर सकते हो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, आराम से मतलब बिंदास होकर करना चाहिए. ये नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेट हो गए. हाँ, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. ये नहीं है कि रोज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं या फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, उससे आपका टाइम किल होता है. तो जो भी आप कर सकते हो, आप कोई हॉबी परस्यू कर सकते हो, आप जॉगिंग करो, रनिंग करो. मैं मूवीज़ देखता था, तो वो ज़रूर कीजिए जिससे कि आप रिफ़्रेश्ड रहेंगे और मतलब रिजुविनेटेड रहेंगे, और नेक्स्ट डे भी आप उतने ही अच्छे तरीके से तैयारी मतलब चालू रख पाएंगे. और एज सत्यम सेड इन वन ऑफ हिज टॉक आई वाज वाचिंग कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. इट इज़ एक्चुअली द की, बिकॉज एक दिन 14 आवर्स पढ़ के अगले दिन आप बिल्कुल मौज काट दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो कंसिस्टेंटली 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए. और आई थिंक दिस इज़ इट. इतना ही बोलना था मुझे. थैंक यू.